Hello student, we are learning now chapter 6 life process, and this chapter is from the 10th class textbook from the CBSE course. Okay, life process. In first of all we have to decide which animal is living and why it is we say that. हम ऐसे क्यों कहते हैं कि ये जिंदा है, ये मृत है, और किस आधार पे कहते हैं दैट्स बेस इज इम्पॉर्टेंट. हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाउ एंड व्हाट इज नॉट अलाउ. इफ वी सी डॉग इज रनिंग और ए काउ इज चीविंग कर्ड और ए मैन शाउटिंग ऑन ए स्ट्रीट, okay, we know that these are living beings. If these things are happen, if dog is running, cow is chewing, man is shouting, okay, these things are done by the living things. What if the dog or cow of the man were asleep? Suppose they are asleep, they are not moving, showing any movement, then we will still think that they were alive. But how did we know that? फिर कैसे पता चलेंगे ये कि ये जिंदे है? सोने के बाद में वो मूवमेंट नहीं, बार्किंग नहीं करते, मूवमेंट नहीं दिखाते, फिर भी हम बोलते हैं. तो हम क्या देखते हैं? उसकी ब्रीदिंग देखते हैं एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. और फिर ब्रीदिंग देखते हैं तो बोलते हैं हम ये अलाइव है बिकॉज they are taking the air in the body, inside the body, and they also throw out the air from their body. Okay, and that's why we say that they are alive, because respiration takes place. But what about plant? How do we know that they are still alive? Because we can't see the respiration process of photosynthesis. Then we see them green because they are green, and we say that they are living. Some of us will say that, but what about plant that leaves of colors other than green? Suppose the leaves, color of the leaves are not green, then what about that? What about the trees? How will you say that they are living or not living? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, आप कह सकते हो कि they are grow alive over the time, they are growing, and that's why we can say that they are living things. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related movement or not. यानी हम ऐसी मूवमेंट देख रहे हैं कि जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो सकती है, बराबर है, और इससे हम कहते हैं दिस इज लिविंग और नॉट लिविंग. एज कॉमन एविडेंस फॉर ए बीइंग अलाइव, बट प्लांट इज नॉट विजिबल ग्रोविंग स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. ठीक है, वो जो ग्रोविंग हो रहे हैं, बट इट इज नॉट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर इज नॉट विजिबल टू अस. There are some animals also. There are some animals which breathe without visible movement. There is no movement. There is no movement. There is no movement. So using visible movement as a defining characteristic of life is not enough. So visible movement is, we can't say that if there is no visible movement, it is dead. We can't say that because there are some things which movement is not visible to us. The movement over very small scale will be invisible to naked eyes. Movement of the molecule, for example. अब movement of molecule की है, ये जो movement है वो हमें naked eyes से दिखती नहीं है, and that's why it is invisible. For example, is this invisible movement necessary for life? ऐसी necessary है क्या लाइफ के लिए invisible movement? That's also a question. If we ask
दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस, क्योंकि वायरस की बात ले लीजिए। डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्टेड सम सेल। वायरस क्या होते हैं? डेड होते हैं। यदि बाहर साइड में है, यानी जो हॉट सेल है वो सेल के यदि बाहर साइड में है तो दे आर जस्ट लाइक ए डेड, बट दे शो मूवमेंट व्हेन दे इन ए इनसाइड द सेल, they are present inside the cell, they show movement, means, and that's why there is a lot of controversy about whether they are truly alive or not. That's the question. There is lot of controversy about the virus, because virus outside the cell show the characteristic of the death, and inside the cell they show the characteristic of the living, and that's why there is a lot of controversy between the scientists whether the viruses are truly alive or not. Next, what are molecular movement needed to life? फिर हमारा ये बात है कि मॉलिकुलर मूवमेंट जो है हमारे लाइफ के लिए नीडेड है क्या, जरूरी है क्या? वी हैव सीन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमने सुना है कि सेल्स अरेंज इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ए बॉडी। ओके, दे कैन हैव टिश्यूज, सेल converted to tissue have cell have smaller component in them, and so on, because of effect of the movement. This organized order nature of living structure is very likely to keep breathing down over time. तो ये जो मूवमेंट है, स्ट्रक्चरल कंडीशन और मूवमेंट उसमें सेल के अंदर, ये मूवमेंट हमें बताती है कि ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है। इफ ऑर्डर ब्रेक्स, सपोज देयर इज नो टिश्यू और देयर इज नो सेल, देयर विल बी नो टिश्यू। ओके, इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव। यदि सेल नहीं है तो टिश्यू नहीं रहेंगी, सेल में कंपोनेंट्स नहीं है तो सेल नहीं रहेंगी, है कि नहीं? तो ये ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाई टू मेंटेन द ऑर्डर living creature keep their repairing and maintaining their structures. Since all the structures are made up of molecule, they must move molecule around all the time. Means molecular movement shows that these things is living or not living. What are the maintain process living organism? Let us explore. हमें और ढूंढना है कि व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है? क्योंकि क्या है, स्ट्रक्चर सही चाहिए तो लिविंग होगा, और स्ट्रक्चर नहीं है तो लिविंग नहीं होगा। इट मीन्स दैट वी हैव टू रिपेयर, वी हैव टू मेंटेन एंड रिपेयर। देखिए, हमें स्ट्रक्चर को क्या करना है? मेंटेन करना है और रिपेयर करना है, सो दैट वी हैव टू लिव। हमें रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? रिपेयरिंग भी करती है और मेंटेन भी करती है। जैसा हम छोटा बच्चा है उसको बड़ा करती है हमारी बॉडी, बड़ा हो जाती है, मेंटेन करता है उतना सब कुछ। और हमारे बॉडी में जो कुछ चीज होता है, डेथ होती है, डेथ सेल है भाई, उसको रिप्लेस करके क्या है, न्यू सेल बनाती है। दिस इज मेंटेन एंड रिपेयरिंग का काम है। तो हमें देखना है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस,
व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। चलो, तो हमें क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर इवन व्हेन दे आर जस्ट सिटिंग इन। हमारी बॉडी क्या करती है, हम सोए भी है तो भी मेंटेनेंस का काम चालू रहता है, बराबर है, रिपेयरिंग का काम चालू रहता है। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। कोई भी बात नहीं करते हैं फिर भी हमारा मेंटेनेंस चालू रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन, हम बैठे भी हैं फिर भी हमारा मेंटेनेंस का प्रोसेस चालू रहता है, और इसी से हम पता कर सकते हैं हम जिंदा है, बराबर है। अब देखिए, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, हम सोए हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। ये पूरा जॉब कैसा होता है, गो ऑन रहता है, चालू रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, और इसको ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, हम इसको ही क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। देन व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस which together perform this maintenance job are life process. Since this maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from the outside the body of individual organism. चलो, हम ये भी थोड़ा बराबर समझेंगे, अपन थोड़ा सीरियस से लेंगे इसको। अब देखो, क्या कहते हैं, since the maintenance process are needed to be prevent damage, यानी हमारी जो मेंटेनेंस प्रोसेस है क्या करती है, क्यों जरूरी है, नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज, हमारी बॉडी में डैमेज नहीं रहना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई द मेंटेनेंस प्रोसेस इज नेसेसरी। और डैमेज नहीं रहना चाहिए और ब्रेकडाउन नहीं रहना चाहिए। समझो अपन चलते चलते हमें ठोकर लग गई है, हमारा ब्लड लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, तो इंजरी को रिपेयरिंग होती कि नहीं होती है ना? हाँ, होती है रिपेयरिंग, ब्रेकडाउन की रिपेयरिंग होती है। ये क्यों होती है? मेंटेनेंस प्रोसेस की वजह से। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। व्हाट इज नीडेड? एनर्जी इज नीडेड। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये अंदर से आती कि एनर्जी? नो। हम देखो पढ़ाई करते करते थक गए, हम बोलते हैं मम्मी खाना दो, मैं बहुत ये हो गया, थक गया। मतलब क्या है, we need food to maintain our body, maintain to repair the damage, मीन्स रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए हमें खाना चाहिए। ये एनर्जी खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एंड एनर्जी इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग प्रोसेस। ओके, फूड इज नीडेड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें काय की जरूरत पड़ती है? एक ऐसी कोई तो भी सिस्टम हमारे बॉडी के आउटसाइड में हो। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ ट्रांसफर करना जो बॉडी के बाहर से अंदर में ट्रांसफर करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए? सोर्स ऑफ एनर्जी। कहाँ से?
outside of the body to organism. It means that we need some mechanism, some system by which we can transfer this source of energy into the inside of body. हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारा खाना है, और खाने के लिए हमारे पास सिस्टम है, हमारा हाथ है, हाथ मुंह तक लेके जाता है, इतनी मैकेनिज्म है। मुंह में और कुछ है, वो बारी भी करता है और कुछ सलाइवा मिक्स करता है, बाद में वो वहाँ से अंदर जाने के लिए की भी सिस्टम है, और अंदर में और डाइजेशन के लिए सिस्टम और डाइजेशन के बाद में एब्सॉर्प्शन के लिए भी सिस्टम है ना, बराबर। दिस सिस्टम इज नेसेसरी, सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एट द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। हम उसको क्या कहते हैं? हमारा खाना। टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। देखो हम ये थोड़ा कलरफुल करेंगे, न्यूट्रिशन, कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या चीज़ है हमें देखना है। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू इनसाइड, एंड प्रोसेस वी कॉल कॉमनली न्यूट्रिशन। हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज मस्ट बी नीडेड, न्यूट्रिशन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। See again, if the body size of organism is grow, additional raw material will be also needed to outside. तो इनसाइड की प्रोसेस हमने देखी है। अब बताइए, ये रॉ मटेरियल हो सकता है, क्योंकि व्हाट एवर वी ईट द फूड इज नॉट टोटली डाइजेस्टेड, not total food cannot be absorbed, and that's why there is raw material, and the raw material हमारे बॉडी से आउटसाइड में थ्रो करना है, that is also important. Since life on earth depend on the carbon based molecule, most of these food source are also carbon based. Any nutrition और अनडाइजेस्टेड पार्ट को थ्रो करना, ये लाइफ प्रोसेस में आता है। अब जो हमारा लाइफ है ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। हमारा खाना कैसा है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। हर कोई लिविंग का खाना है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, और हमारा जो खाना है बहुत सारा वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का होता है। हम देखो, हमारा जो भी खाना हम खाते हैं, कोई भी फल फ्रूट खाते हैं, वो कार्बन बेस्ड के होते हैं। देखो, depending on the complexity of this carbon source, different organism can then use different kind of nutrition process. अब न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारी एक नहीं है। देखो, दिस इज आल्सो मेन सेंटेंस, वी कैन से दैट। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स। अब हर एक का खाना एक ही नहीं है, एंड कॉम्प्लेक्स जो कार्बन जो है वो कंपाउंड में है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अलग अलग होती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि टाइगर डू नॉट ईट ग्रास, हर्बीवोरस डिपेंड ऑन द ग्रास, बस कार्निवोरस
depend on the herbivores. It means that the complexity of carbon source is different. Different organism can then use different kind of nutritional process. और इसीलिए हर किसी की न्यूट्रिशनल प्रोसेस इज डिफरेंट. Why the nutrition process is different from animal to animal? Because their food is carbon based food, and the complexity of the carbon source is different, and that's why each and every animal must have different kind of nutritional process. हमें कैसी होना चाहिए? न्यूट्रिशनल प्रोसेस कैसी होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. बिकॉज द सेम थिंग इज नॉट ईटन बाय ऑल एनिमल्स. देयर foods are different. Okay, it comes from different source. Then the outside source of energy could be quite varied since the environment is not under a control of individual. अब जो हमारे आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है could be quite varied since the environment is not under a control of individual organism. हमारे इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो हमें क्या ऑर्गेनिज्म के अनुसार चलती है क्या? नो. Organism have to adjusted with the environment. Organism have to adjust the environment, and that's why हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कैसा है? डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल्स. हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी जो फूड कहते हैं हम वी से फूड. The foods are different with a different animal. These source of energy therefore need to be broken down and build up in a body. हमें क्या करना पड़ेगा? ये हम जो खाना है उसको क्या करना पड़ता है? ब्रोकन डाउन करना पड़ता है. इन ए सिंपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. क्या करना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करना पड़ता है. कॉम्प्लेक्स टू क्या करना पड़ेगा? सिंपल में ट्रांसफर करना पड़ेगा. ब्रोकन डाउन करना मतलब क्या है? सिंपल में करना है. बिल्डअप इन ए बॉडी. इन्हें हमारा जो ऑब्जर्वेशन एब्सॉर्प्शन सिस्टम के अनुसार हमारी बॉडी क्या एब्सॉर्ब करती है हमें देखना पड़ेगा. एंड according to our absorption process we have to break down our complex food. Okay, must be finally converted to uniform source of energy. हमें यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए. यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में मतलब क्या है? हमें सिंपल कंपाउंड होना चाहिए. सिंपल कंपाउंड. ओके, विदाउट if we not turn the complex carbonic compound into simple compound, then we can't create energy. And that's why need to be broken down and build up in body and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintenance living organism. These simple substances are used in molecular movement. काय में यूज होते हैं ये? मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे होते हैं. नीड फॉर काय के लिए मेंटेनेंस, काय के लिए महत्वपूर्ण है ये? मेंटेनिंग द लिविंग स्ट्रक्चर. वी हैव टू मेंटेन द लिविंग स्ट्रक्चर with the help of these broken down substances, as well as to kind of molecule the body need to grow. और some ऐसे ही सब्सटेंस काहे के लिए यूज में आते हैं? टू
नीड टू ग्रो दी बॉडी। हमें ग्रोथ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये जो सप्लीमेंट्स हमारे दो काम की चीज़ के लिए, एक तो मेंटेनेंस करना है हमें, या हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है दीज सिंपल सब्सटेंसेस। देन फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल, फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी आर नेसेसरी। फिर हमारे बॉडी में क्या जरूरी है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या जरूरी है? तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, जैसा ऑक्सीडाइजिंग, reducing reactions are some of the most commonly chemical means to break down the molecule. हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, रिडक्शन रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, रिडॉक्स रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, why? To repair the body and for the growth of body. Oxidizing, reducing reaction are some important, most commonly chemical means to break down the molecule. हमें ये ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग करना पड़ेगा, रिडक्शन रिएक्शन करना पड़ेगा. For this many organism use oxygen source from the outside body. अब ऑक्सीडेशन करना है, हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है. It means that we need oxygen from the outside of body. हमें इन्वायरमेंट से क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा इनसाइड में. बराबर है. तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेंगे बिकॉज देयर इज केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी जस्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी. Our organism need oxygen from the outside of the body. The process see here. The process of acquiring oxygen, from the outside of body to use the process of breakdown of food source for a cellular need. Cellular need means सेल के नीड के लिए is what we call respiration. तो respiration क्या है? Respiration is a process in which acquiring of oxygen, taking of oxygen from the outside body to inside the body. क्यों? Why? It is the process of breakdown of food. हमें क्या करना है? हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीडाइज करना है. क्यों करना है? टू मीट द सेलुलर नीड. बिकॉज सेलुलर, if we not satisfy the cellular need, the organism will not alive. It will die. And we see that. That's why we see that. We observe that when man is sleeping, whether he is taking respiration or not. हम उस सांस ले रहा कि नहीं ले रहा ये देखते हैं, क्योंकि सांस ले रहा है मतलब लाइफ प्रोसेस चालू है, और सांस नहीं ले रहा है मतलब लाइफ प्रोसेस इज स्टॉप. लाइफ प्रोसेसेस आर स्टॉप, एंड दैट्स व्हाई we need oxygen for the living. तो रेस्पिरेशन आ गया, न्यूट्रिशन आ गया लाइफ प्रोसेस में. और क्या आता है हम देखेंगे, और इसमें क्या क्या था. इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोब्स की बात करें. नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट बी नीडेड. उनमें क्या नहीं होता है? स्पेसिफिक ऑर्गन. देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन.
काहे के लिए? टेकिंग इन फूड, खाना अंदर लेने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, जिसको हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस बोली है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जिसको हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस बोला है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मीन्स जिसको एक्सक्रीशन प्रोसेस बोला है। वो सब नहीं दिखते हमें सिंगल सेल ऑर्गन में, उसमें सिस्टम नहीं दिखती है हमें। वो प्रोसेस दिखती है लेकिन सिस्टम नहीं दिखती है हमें। कहाँ? इन सिंगल और सेल ऑर्गेनिज्म। बिकॉज, क्यों नहीं दिखती है? बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। बॉडी का पूरा हिस्सा, सेल का पूरा हिस्सा क्या होता है? कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। दैट्स वाई दे नीड नॉट सच स्पेशल सिस्टम। अब देखिए ये सेंटेंस भी हम इम्पोर्टेंट बोलेंगे, तो इसीलिए हम हाईलाइट उसको भी करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कलर से। तो समझ गए क्या ये बात? क्या है बात ये? इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग फूड। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के लिए नहीं होता। रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए नहीं होता। बिकॉज इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन ए कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ में पूरी सेल होती है। हमारी ऐसी होती है क्या सेल पूरी? नो, हमारी सेल पूरी कांटेक्ट में नहीं होती और इसीलिए हमें ये सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन माइक्रोब्स को देयर इज नो नीड ऑफ सच सिस्टम। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज? क्या होता है? सपोज बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसा जैसा बॉडी का साइज इंक्रीज होता है वैसा वैसा बॉडी की डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है? बॉडी की डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स होती है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cell may not be in direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirement of all the cell. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल सिस्टम क्यों जरूरी है? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Why? Because when the size of organism increase, जैसा जैसा हमारा साइज इंक्रीज होता है बॉडी डिजाइन बिकम कॉम्प्लेक्स होती है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल में नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंट. हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता सेल का. थस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल. तो इसीलिए सब सेल सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकती. हमारी सभी सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती. The all cells of multicellular animal are not come in contact with environment, and that's why they do not take the food, or they do not complete the excretion process in a cell wise. सेल वाइज नहीं कर सकती क्योंकि कुछ सेल हमारे अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है. दिस सेल इज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट. ओके, आउटर सेल कॉन्टैक्ट में आ जाती है लेकिन हमारी ये सेल नहीं आती है ना. एंड दैट्स वाई तो ये लाइफ प्रोसेस की, ये जो सेल की लाइफ प्रोसेस है क्या है? लाइफ प्रोसेस है. ये कॉन्टैक्ट में नहीं होने के कारण नहीं हो सकती. एंड दैट्स वाई इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सिस्टम इज रिक्वायर्ड. स्पेशल सिस्टम होना चाहिए. बराबर है. तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम इसको हाईलाइट कर लेंगे. इसको क्या करना है? हमें हाईलाइट करना है. चलो हम थोड़ा कलर भी कॉम्बिनेशन कर लेंगे.
कलर कॉम्बिनेशन हो गया। इन्हें ये दोनों जो हाईलाइट है येलो और ब्लू, ये येलो काय के लिए है, ये कि छोटे यूनिसेल्युलर को ज़रूरत नहीं है स्पेशल सिस्टम की, और मल्टी सेल्युलर को स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, ये एक्सप्लेन करती है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? We have seen previously how multicellular organism various body part have specialized in a function of they perform। यानी हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल पार्ट्स होते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाउ स्पेशलाइज इन फंक्शन दे परफॉर्म, दे आर स्पेशलाइज इन फंक्शन टू परफॉर्म। जैसे हमारे हाथ होते हैं काम करने के लिए, खाने के लिए, स्पेशली खाने के लिए होते हैं, हमारे दांत तोड़ने के लिए होते हैं, बाकी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम स्पेशलाइज होती है ना, और स्पेशलाइज फंक्शन होती है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दी स्पेशलाइज टिश्यू, और हमारी कुछ स्पेशलाइज टिश्यू भी होती है, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनका ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ में होता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों? किस दिस टिश्यू ऑफ द स्टमक्स आर डिफरेंट देन द टिश्यू ऑफ द बोन, बिकॉज टिश्यू ऑफ स्टमक इज द वर्क ऑफ टिश्यू ऑफ stomach is different. Okay, it is therefore not surprising that uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissue, and that's why it is therefore not surprising that uptake of food यानी फूड अंदर लेना है, and of oxygen और ऑक्सीजन भी अंदर लेना है, will also be function of specialized tissue, और ये जो फंक्शन है अंदर लेने का ऑक्सीजन, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बन जाता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल इज नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट के साथ में नहीं आती, एंड दैट्स वाई देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक ऑफ फूड अंदर लेना और ऑक्सीजन भी अंदर लेना will also be the function of specialized tissue। ये जो फंक्शन है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू का होता है। ओके, देन however this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in a body of organism which all parts of body need them। फिर क्या होता है? ठीक है, एक पार्ट ने ऑक्सीजन और फूड लेके गया अंदर में, इज दिस ऑल? ये सब हो गया क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज फूड नीड ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इज टू ऑल सेल, उसकी जरूरत है सबको, बराबर, सब सेल को जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मस्ट बी नेसेसरी। वह ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वैसी सिस्टम जरूरी है। जिस प्रॉब्लम बोला मतलब हम अंदर तो ले लेते हैं तो और एक प्रॉब्लम तैयार हो जाता है। देखो उन्होंने कहा है हम अंदर तो ले लेते हैं खाना, लेकिन इससे प्रॉब्लम तैयार होता है। क्यों? सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट ए वन प्लेस इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के एक प्लेस में लेके गए, while all part of body need them, और सभी बॉडी का पार्ट को ये खाना चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बॉडी। फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरी पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसा हमारे गैरेज में एक समझ जाओ हमारे कारखाने में माल बन गया, बराबर है, कारखाने में माल पैदा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन।
Similarly, the oxygen and food are present inside the body, but now there is problem of distribution, and to distribute to all cell we need transportation system. This situation create a need of transportation system for carrying food oxygen from one place to another place in body. और इस तरह से हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आ गई। क्यों आती है, क्यों आती है, ये मेन है, ये रीज़न है उसका क्यों आती है। तो बराबर, दिस इज द मेन रीज़न। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर now taken up at one place in body of organism, while all part of body need them. This situation create a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another place in the body. Next part. When chemical reaction use कार्बन सोर्स, अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गई। अब क्या हो गया है, फूड जो बना है काय का बना है, कार्बन कंपाउंड का बनाना है, कार्बन सोर्स का बना है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन, ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ बॉडी। देखो, दे क्रिएट क्या करते हैं, ये बाय प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर सेल ऑफ बॉडी। वो कैसा है, यूजलेस है, लेकिन यूजलेस भी ऐसा है, वो वहाँ रहा तो हार्मफुल भी है, उसको बाहर फेंकना जरूरी है, बिकॉज इट इज ए बाय प्रोडक्ट, नॉट ओनली यूजलेस बट हार्मफुल आल्सो। बराबर है, वो बाय प्रोडक्ट कैसा है, कार्बन सोर्स से और ऑक्सीजन से जो तैयार होता है, कुछ एब्सॉर्प्शन हो जाता है, एनर्जी एब्सॉर्प्शन होती है, बट जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट दैट नॉट ओनली यूजलेस बट हार्मफुल आल्सो। ये कैसा होता है, यूजलेस ही नहीं होता तो हार्मफुल भी होता है, एंड दैट्स व्हाई बॉडी हैव टू थ्रोन आउट it, we have to throw out these waste byproduct are therefore need to be removed from the body and discarded outside by the process of excretion। और हम फिर बाद में excretion system में डेवलप करना पड़ता है। this waste byproduct, ये जो waste byproduct है, therefore need to be removed from the body, हमें बॉडी से निकालना है, and discard outside by the process called excretion, और excretion के प्रोसेस से हमें बाहर फेंकना है। Again, if the basic rule for body डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, और हमें क्या है, और बेसिक रूल हमें फॉलो करना पड़ता है। ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बॉडी को एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। अब हमें एब्सॉर्प्शन के लिए नहीं, बल्कि केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं, बट हमें ये बाय प्रोडक्ट को फेंकने के लिए भी, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, हाउ टू डेवलप स्पेशल टिश्यू, वी हाउ टू डेवलप, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। हमें क्या पढ़ रहा है,
कि उसका जो बाय प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। कहाँ तक करना है? एक्सक्रीटरी टिश्यू तक ट्रांसपोर्टेशन करना है, सिस्टम तक करना है ना। और इस तरह से क्या होता है, एक सिस्टम आ गई तो दूसरी सिस्टम भी लाना पड़ता है। एंड दैट्स वाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ मल्टी सिस्टम से होती है, बराबर। उसमें इनटेक होता है, कुछ ऑर्गन तैयार की जाती है, एब्सॉर्प्शन होता है, डाइजेशन के लिए कुछ होता है तैयार, बाय प्रोडक्ट फेंकने के लिए भी तैयार होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है। तो बॉडी नीड मेनी सिस्टम। लेट अस कंसिडर द वेरियस प्रोसेस टू इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस हमें बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। हम ये सब इसके बाद के हम वीडियो में देखेंगे। फिर भी देखो, व्हाई इज डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन में हमें डिफ्यूजन सिस्टम क्यों नहीं यूज होती है? क्योंकि हमारी बॉडी कैसे मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर सिस्टम में क्या होता है कि हर सेल इज नॉट कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरी सेल इज नॉट कॉन्टैक्ट विथ इन्वायरमेंट, and that's why oxygen diffusion is not possible. We need special system. Okay, what criteria do we use to decide whether something is alive? तो हमने मूवमेंट देखी जो प्लांट में नहीं है, बराबर है। प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट है, वो भी दिखती नहीं है ना। तो हमें क्या है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हमें चाहिए, सेल स्ट्रक्चर। एंड सेल स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाद में व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय ऑर्गेनिज्म। जो व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय ऑर्गेनिज्म। जो रॉ मटेरियल आउटसाइड में क्या है, फूड है हमारा, जो एनर्जी सोर्स है, और ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडेशन के लिए काम में आता है। दीज आर दी रॉ सोर्स मटेरियल है, रॉ मटेरियल फॉर दी ऑर्गेनिज्म है। विच प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मेंटेनिंग लाइफ के लिए हमने 2-4 प्रोसेस देखी है। हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशनल प्रोसेस ये इम्पॉर्टेंट है, एब्सॉर्प्शन प्रोसेस है, बाय प्रोडक्ट होने के कारण एक्सक्रीशन सिस्टम है, बराबर है, मेंटेनेंस है और रिपेयरिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है इसेंशियल होती है। तो यह हम रुक जाएंगे, बाकी का भाग अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप दैट you will understand it. My phone number is 9225851683। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो ये व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कमेंट कीजिए या आप यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।